And my Sriman A.K. Misra sir, GM Project, Sriman Atul Gupta sir, GM Medical Services, Sriman Udayan Tiwari sir, my senior colleagues, ladies and gentlemen, and all the members of all union and association. I welcome you all on the occasion of celebration of 133rd birth anniversary of the greatest scholar of world history, none other than Bodhisattva Baba Saheb Dr. Ambedkar. So, first of all, I wish to say that to illuminate the colossal figure of Baba Saheb Dr. Ambedkar, it's quite some task in limited time. Still, I will try my best to throw sufficient light on his life and mission. So, Baba Saheb Dr. Ambedkar was a scholarly statesman of superlative attributes. Our existing republican mechanism owes fairly to his singular wisdom and his erudition. So, it is a long tradition in our country that we worship our heroes, rulers, and so many other great persons based on exaltation of sycophant bards, and we forget the true chronicles of our real heroes. So I really feel that Baba Saheb was one of them, and this country has not accorded that place which it truly deserves. So mostly all of us consider him or know him as the chief architect of Constitution of India. But he was much more than that. To say a few things about him, he was a world-class economist, an eminent jurist, a theologist, a political leader, a historian, a social reformer, an activist, and messiah of downtrodden, and a philosopher, and ultimately at a dying moment of his life, he turned into a Buddhist monk. So, at the outset, I wish to say that who is a great man. When we choose और जब हम अपने हीरो सेलेक्ट करते हैं, तो हम किन बातों पर? बहुत लोग यहाँ होंगे या इस हॉल के बाहर या देश में भी हैं, जो मानते हैं कि नहीं बाबा साहब उतने ग्रेट नहीं है जितना उनका एडमिरेशन किया जाता है. So in this context, I wish to state few lines that who can be considered a great man. So if we talk of military leaders like Alexander, Attila, Tamerlane, Samudragupta, Ajatasattu, there are so many. There are various names we can take here. It's not easy, not difficult to answer. But these all military leaders, they dazzle their contemporaries by resounding victories. But their permanent effect on the society and the mankind is very limited. We all are aware of Napoleon, who was a great military general. But after all, after so many victories and conquests, he left France smaller than when he found it. जब उसको मिला वो जितना एरिया था, इतनी सारी विक्ट्रीज के बाद तो फ्रांस को जब वो छोड़ कर गया, जब वो शासन से हटा तो फ्रांस से एरिया स्मॉलर था. तो कहने का मतलब ये कि ग्रेटनेस के लिए दो तीन क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट है कि ही मस्ट बी सिंसियर. सिंसियरिटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल द मोरल क्वालिटीज व्हिच वाज देयर इन बाबा साहब. जैसे मान लीजिए कि कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, रिस्पेक्ट, रिवरेंस होना चाहिए अपने फेलो कंट्रीमैन के लिए. तो ये बात है. तो सिंसियरिटी इज नॉट अ सिंगल क्वालिटी, सिंगल एट्रीब्यूट व्हिच मेक्स अ मैन ग्रेट. Apart from sincerity, suppose a sincere man can also be a fool. So a fool is very much antithesis to a great man. Who can be said to be a great man? A great man is that man who finds solution, who suggests ways to the society at the time of crisis. So the second quality is he must be intelligent. But all these two, this combination of these two qualities constitute only an eminent person. But great person is something greater than that. According to Baba Saheb, great person is that person who is aware of, who is devoted to the dynamics of some social purpose, and he acts as a scourge and a scavenger of the society.
या विप की तरह काम करे, सोसाइटी में कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसके खिलाफ बोले, उसके खिलाफ आवाज उठाए, स्कैवेंजर जैसे गिद्ध एक्सकैवेंजर होता है वैसा वो क्लीनिंग का काम करे। तो ये 3 क्वालिटी बाबा साहब के अंदर थी, इसलिए मैं मानता हूँ को न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट्स ऐसे उनको कह सकते हैं, वो पर्सनैलिटी थी। इसके अलावा देखिए बाबा साहब को काम या उनका लाइफ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब ने 1936 में उनकी एक पुस्तक आई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद है जातियों का विनाश। So there were so many people who were not, conquering with his opinion because he was very stringent on his remarks towards Vedas, Shastras, and so many Hindu scriptures. And so many people, among them, Baba Sahib replied to only one person. He replied only to Gandhi because Gandhi had written an article supporting the caste system or Varnashram, arrangement in his, fortnightly paper Harijan. So in this regard, बाबा साहब ने एक बात कही कि मैंने उनका जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैं बहुत कोई महत्वपूर्ण बात कह दिया है, बहुत कोई भारी भरकम बात की है। I replied to Mahatma Gandhi only not because his statement is so weighty, only because to many Hindu he is an oracle. He is such a figure. When he speaks, all the arguments must close and no dog must bark. But उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई इस विश्व को ऐसे लोगों का भारी नहीं होना चाहिए जो व्यवस्था के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि दिस वर्ल्ड, बाबा साहब के शब्दों को मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि दिस वर्ल्ड ओज मच टू रेबल्स who dare to argue in the face of pontiff and insist that he is not infallible। जो pontiff होता है बिशप को बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से संसार को जो बिशप है या प्रीस्ट है उसका नहीं, गैलीलियो का शुक्रिया अदा करना चाहिए था जो जिसने व्यवस्था के विरुद्ध बोला। बाबा साहब का आभारी होना चाहिए इसको। ये थी बात। अब मैं बाबा साहब की लाइफ और उनके मिशन के कुछ जो बिंदुओं को मैं शॉर्ट कर मैं रखना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। Baba Sahib was born to abominable caste of Mahar, which was considered to be untouchable, unapproachable, and unseeable too. He has to face severe stigmas like his touch, his even shadow was considered to be polluting to the caste Hindus. So his life was marked by so many disabilities and all type of maltreatments. But amid all these things, he completed his primary education. और प्राइमरी एजुकेशन में मैं यहाँ के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उनका एडमिशन तो हो गया था क्योंकि वो सुविधार के लड़के थे, बट ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लासरूम, सो ही स्टेड आउटसाइड द क्लासरूम। पानी पीने की उनका अधिकार नहीं था तो उनको ऊपर से पानी पोर करता था, बट he never lost his patience. All these incidents had indelible marks। उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, रिजोल्यूटनेस थी, उसको इन्होंने बढ़ाया। इसके अलावा जो पडोली रेलवे स्टेशन वहाँ से गोरेगांव जा रहे थे और इसका चित्र भी उन्होंने बड़ी बहुत ही ऐसी घटना है जिससे सुन करके आदमी का आंसू निकल जाए कि पडोली से वो जा रहे थे गोरेगांव के फादर के पास और बुलक कार्ट में बैठे तो बुलक कार्ट से निकाल के फेंक दिया गया और कम से कम 30 किलोमीटर का रास्ता था वहाँ गोरेगांव में और सुबह शाम तक वो बैलगाड़ी में तो पहले तो कार्ट में नहीं ले जा रहा था, बट he agreed to pay double, then he alighted from the vehicle और ये लोग ये और भाई मिल करके अपनी कार्ट को ले गए। तो ये था कि उसके बाद गए, but all along the way he was not allowed to drink the water. He had some tiffin, but he could not consume that because he was not given water anywhere, not in any village, any town. So all along the way, whenever the people come to know that he is from Mahar community, they directly go and take the filthy water. तो ये सब बातें थी। इस सब के बीच में वो सन 1913 में सयाजी गायकवाड़ की जो स्कॉलरशिप उसको लेकर के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो लाला लाजपत राय के भी प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर R.S. सेलिग्मैन। उनके सानिध्य में उन्होंने पढ़ाई शुरू किया और वहाँ उन्होंने एक नहीं 7-8 विषयों में एक साथ एडमिशन किया। उसमें मोरल फिलॉसफी थी, एंथ्रोपोलॉजी थी, पॉलिटिकल साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, एथिक्स था, सोशियोलॉजी थी, इतने सारे विषयों में एक साथ, बट इकोनॉमिक्स वाज हिज मेन सब्जेक्ट। सो आफ्टर और वहाँ करीब 2 साल के स्टे में
न्यूयॉर्क शहर में कोई भी लाइब्रेरी, यहाँ सारे बच्चों को और आपको सुनाई, कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं थी जिसमें वो गए नहीं, जिसकी किसी पुस्तक को छोड़ा है। करीब 3000 किताबों का अध्ययन किया उन्होंने 2 साल में, जो कि बहुत ही सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। आज एक पेज पढ़ने का पेशेंस नहीं करेंगे, 3000 किताबें उन्होंने पढ़ी हो, और 2 साल तक वो करीब 18 घंटे पढ़े, कोई लाइब्रेरी नहीं 18 घंटे, and work was published after 2 years of ultimate hard work. Its name was Ancient Indian Commerce. इसके बाद इसी से उनको एमए की डिग्री इकोनॉमिक्स में मिल गई, बट इसके अलावा एक पैरेलल थीसिस थी जिसको नेशनल डिविडेंड एंड हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, इसके ऊपर भी उनकी डॉक्टरेट हुई। इसके अलावा एक बहुत ही स्कॉलरली वर्क जिसके बारे में कम जानते हैं, उसका नाम है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड देयर डेवलपमेंट। वहाँ के एक एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में प्रोफेसर एडविन गोल्डन विजर के अध्यक्षता में उन्होंने ऐसी बातें रखी जो पूरे अमेरिका यूरोप में कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस टाइम जो कास्ट की ओरिजिन है उसके बारे में नहीं सोच पाया था। तो इस तरह से उनका जो कोलंबिया में स्टे था 2-3 साल का, वहां रहे। उसके बाद he came to London for further studies and he was admitted to London School of Economics for his postdoc and parallelly he was admitted to Gray's Inn for his barrister course. So London School of Economics में उनकी डॉक्टरल थीसिस थी, वो बहुत एडवांस लेवल की थी। और मैं बताना चाहता हूँ खास करके बच्चों को और अभिभावकों को, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि इसको समझ पाए, कि आज लोग बोलते हैं हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास खाने को नहीं था, वो पापड़ खाते थे, चाय पीते थे। लेकिन 8 साल का कोर्स बाबा साहब ने सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरा, 18 आवर्स पर डे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो रिकॉर्ड है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किसी एक इंडियन का फोटो लगा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे किया था अभी 4-5 साल पहले, so there is some introduction. I wish to welcome our honorable head of project to this program, and I wish to continue. I greet him and I welcome him. Thank you. So I was talking about his stay at Columbia University, followed by London School of Economics and Gray's Inn for his barrister course. So I was telling that he was studying for 18 hours a day, and he was living with his room partner who was also from Maharashtra, Mr. Asnotkar, and he was sleeping comfortably, and he was day and night, day in day out, Baba Sahib was working, and उनके पास रूम नहीं था तो कार्ल मार्क्स की मजार पे जाकर पढ़ते थे। कार्ल मार्क्स की मजार पे जाकर रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ा करते थे। और उनका जो थर्स्ट है, his thirst for knowledge, his thirst for knowledge was insatiable. None of the libraries were left in London city. हर लाइब्रेरी में वो गए, हर आर्काइव में गए, और 2 साल की मेहनत के बाद उनका जो थीसिस पब्लिश हुआ उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। Problem of the rupee was such a scholarly work that it was admired by all over the world by all chief economists. So after this, he came to India. In India, he was as per the contract, he was deployed to Baroda State as a military secretary. But in spite of the rupee, his evidence before Hilton Young Commission, RBI की स्थापना किया गया। इसके अलावा एज ए लेबर मेंबर, जैसे कि हमारे साथी ने बताया, 1942 में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लेबर मेंबर जो है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उन्होंने गठन किया। उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स का मैनिफेस्टो था जिसमें आपका जितने बेनिफिट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, ट्रेड यूनियंस के बारे में, मेटर्निटी बेनिफिट्स के बारे में, जितने कानून हो सकते हैं, जो है लो इनकम ग्रुप को टैक्स नहीं देना चाहिए, एग्रीकल्चर स्टेट इंटरप्राइज होना चाहिए, इस सब लैंड रिफॉर्म के बारे में बाबा साहब का बहुत ही क्रांतिकारी व्यू था। अंतर जब वो लॉ मिनिस्टर बने तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदू कोड बिल था जो कि पास नहीं हो पाया, उनका बहुत प्रयास। दैट्स व्हाई he was differing with Mr. Nehru, so he resigned from the cabinet. और जीवन के अंतिम क्षणों में इन सब के बावजूद जो है उन्होंने उनका बुद्धिज्म के तरफ बहुत झुकाव हुआ, और उन्होंने चाइना से लेकर के वियतनाम और बर्मा करीब 2000 ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, और उनको जो है कि बुद्धिज्म में बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है, अंततः बुद्ध धर्म स्वीकार किए। तो अंत मेरा ये कहना है कि जो भी राइट्स हैं वो समाज के सोशल कॉन्सेप्ट से प्रोटेक्ट होते हैं। कोई लॉ, कोई कोड,
कोई जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर कम्युनिटी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो, क्योंकि एक वर्क हुआ करते थे ओरेटर, बाबा साहब ने उनका बहुत अध्ययन किया, बर्थ क्या किया, एमर्सन क्या किया, जेफरसन क्या किया, जितनी फिलॉसफी कम्युनिज्म से लेकर के सोशलिज्म सबका, तो उनका कहना है कि आप मल्टीट्यूड को आप पनिश नहीं कर सकते। समाज में 1 लाख लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो अपने फेलो कंट्रीमैन के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो आप मल्टीट्यूड को पनिश नहीं कर सकते। यू कैन पनिश ए सिंगल इंडिविजुअल हु इज कैल्सिट्रेंट इज इन क्राइम, बट यू कैन नॉट पनिश द मल्टीट्यूड। तो इस तरह से बाबा साहब का जन्म से लेकर के आखिरी वक्त हर एक छात्र प्रेरणा लायक है। अंत में मैं एक बात कहूँगा यहाँ के बच्चों और अभिभावकों के लिए कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ उनका माल्यार्पण करने से, उनके गीत गाने से, नमस्ते करने से कुछ भी होना नहीं है। जब हम एक कोई क्वालिटी उनको यहाँ से लेकर जाए, उनको मैं लास्ट बात सुनना चाहता हूँ कि आपके अंदर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट इतनी, जैसे बाबा साहब ने कहा कि एक बार मैं बेनी से मुंबई आ रहा था और 6 दिन की यात्रा में मैंने 8000 पेजेस पढ़े। तो जो भी स्ट्रगल होता है, जो भी सेक्रीफाइस होता है, ज्ञान इसी से पढ़ता है। तो इसीलिए सभी अभिभावकों से और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब के जीवन से कुछ प्रेरणा लाते, एक हैबिट कल से अपना बनाना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।